Please, a big round of applause for all our guests. Good evening, everyone, and welcome to the launch of Keys, the HLP Way to a Regret-Free Life, written by Santosh Joshi. I also welcome the guests who have joined us online to witness the occasion through our live webcast on Google Hangout. I am your compere for tonight, Meera Bhastekar. For this very special evening, we have invited three esteemed guests. Our first guest is an internationally recognized film actor, having done over 250 films in the last 35 years. He has been the recipient of the National Film Award in 1987 for the film Mirch Masala and many other prestigious awards thereafter. He has a keen interest in exploring and experiencing spirituality in practical life. He has started conducting soul classes 15 years back for corporate groups in India and the Middle East. Currently, he hosts the popular international TV program Awakening with Brahma Kumaris with Sister Shivaniji. Through the program, he has helped people overcome mental stress, depression, addictions, low self-esteem, and unhappy relationships as they take personal responsibility for their lives. Our guest has founded the Oberoi Foundation, under which his entire family has been involved in humanitarian activities. Known for his impeccable persona and resounding voice, please welcome Shri Suresh Oberoi, please. I request Aruna Joshi to welcome Shri Suresh Oberoi with a bouquet. Thank you all. Our second guest is a young intellectual and composed leader. He has strong views regarding our city's issues and its progress. One could say he truly understands the pulse of the people. In the past, he has been secretary of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, Mumbai, and the president of Yuva Morcha BJP. In 2002, he won the municipal elections and was a corporator for Khar West. Since 2008, he started taking up social issues through Spandan Art. He has made several documentaries and short films. His film on the 26th July, Tilaj, was nominated for Goa Film Festival. Now he is working on a film based on Swami Vivekananda on the occasion of his 150th birth anniversary. Presently, he is a member of MARDA, Governor of Mumbai Metro Heritage Society, Secretary of the Unorganized Maharashtra Labour Union, elected member of Mumbai Cricket Association, and President of Mumbai District Football Association that represents over 350 football clubs. Most importantly, he is a member of Maharashtra Legislative Council and the newly elected President of Bharatiya Janata Party in Mumbai. Please welcome Advocate Ashish Shelaya. Our third guest is the author of Local Global, All About Winning Indian Elections, and the novel CEO. He spearheaded the ambitious initiative of public-private partnerships in the area of education and uplifting the rural mass. He has 2 decades of experience in different industries ranging from IT, printing, and education to infrastructure and finance. In the past, he has been the chief of international operations with a leading IT company. He has traveled to more than 50 countries to deliver talks on various subjects like education, economy, and management. He has also conducted top management workshops in the Arab and African world. Please welcome the Editor-in-Chief and Head of Operations at Zee Chovis Stars, Dr. Uday Nirgurkar. We would also
also like to welcome a few other special guests who are present with us here. First of all, I'd like to request Aruna to welcome Mr. Sunil Rane, the BJP leader. Another important guest we have here today is Mr. Abhijit Samant, also from BJP. Before we begin the main event, I request Shri Suresh Oberoi, Advocate Ashish Shilal, and Dr. Uday Nirkulkar to light the lamp along with the author Santosh Joshi. Sir, teacher, sir, excuse me, someone will help me. So, yeah. वो साइड पे जाना. Now that we have an auspicious start to the occasion, we'd like to get to know Santosh a little better. Most of us sitting in the crowd already know a little bit about him, but I'd like to call on stage someone who has known him for a very long time, Mr. Sanjay Deswal. Mr. Deswal is founder director of Andy Consulting and is a leading consultant on foreign trade policy. He is advisor to logistics and finance department of several MNCs, Indian organizations, public sector companies, and foreign companies. Please welcome Mr. Sanjay Deswal. Shri Suresh Oberoi, Advocate Ashish, Dr. Uday Nirkulkar, and all other guests. A very, very good evening. It's a huge pleasure for me to introduce Santosh, and also it has been a huge privilege for me to be with him since his childhood. I have known Santosh from our college days. So we did engineering together. We saw him as a person who was completely must, हमेशा खुश. हमने उसको इंजीनियरिंग के अंदर भी वैसे ही देखा, पढ़ना लिखना कम हो या ज्यादा हो, वो संतोष करता था. उसका नाम ही संतोष था, तो हमने उसको संतोषी एक्चुअल में संतोष बुलाना शुरू कर दिया. हमेशा बहुत हेल्पफुल और चेहरे पर एकदम शांत मामला, वो हमें देखी इसके अंदर. इंजीनियरिंग करने के बाद में कॉर्पोरेट लाइफ में गया, पता चला जिंदल के अंदर जो है एक बहुत बड़े ओहदे पर था. हम लोग देखते रहे वो कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर आ गया, कॉर्पोरेट लाइफ में ऊंचा चढ़ता चला जा रहा है. जिंदल के बाद में BHP ब्रिटेन का कंट्री मैनेजर बन गया, उसके बाद कारगिल कंपनी में आ गया, उसके बाद में इंटरनेशनल कोल ट्रेडर बन गया. जब भी हम उससे मिलते, कभी कभी स्ट्रेस दिखता है, लेकिन एक चेहरे पे हमेशा संतोष नजर आता है. उसके नाम ही संतोष था. हम उससे पूछते रहते थे क्या रहस्य है इतना, मतलब यू आर सो हैप्पी ऑलवेज, बात क्या है.
अब कुछ तो था इसके अंदर जो शायद हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कोल्ड ट्रेडिंग करते समय जो है फिर अचानक से संतोष डिसअपियर हो गया। एक आध साल डिसअपियर होने के बाद में किसी तरह उसको खोज करके पूछा भाई क्या कर रहा है, मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे बचपन का ड्रीम जो है उसके ऊपर मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूँ, अभी नहीं बताऊंगा। फिर पता चला कि संतोष को एक्चुअली लाइफ के ऊपर रिसर्च कर रहा है, पास्ट लाइफ के ऊपर रिसर्च कर रहा है, पास्ट लाइफ की बातों की वजह से क्यों रिग्रेट्स होते हैं, क्यों हम इसे मरे करते हैं, उसके बारे में रिसर्च कर रहा है। Then we got to know about his workshop, पास्ट लाइफ रिग्रेशन टेक्निक्स के ऊपर वर्कशॉप कर रहा है, उसके बाद में हीलिंग के ऊपर, सेल्फ हीलिंग के ऊपर वर्कशॉप कर रहा है। फिर उसका दिल्ली में एक वर्कशॉप हुआ, तो ऑफ कोर्स मैं गया उस वर्कशॉप के अंदर। Then I got to know that this guy has completely transformed. ट्रांसफॉर्म क्या, वो शायद उसके अंदर से ही था, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहना चाहिए, बट वो कंप्लीटली इवॉल्व हो गया। वहां हमने उसको देखा उसके वर्कशॉप के अंदर की जो मेडिटेशन टेक्निक्स उसने बताई वो आज तक हमारे को इतनी इफेक्टिव कभी नहीं हुई। उसका इंजीनियरिंग माइंड पूरा जो टेक्निकल ब्रीदिंग टेक्निक्स थी, वो 8 बार ब्रीदिंग टेक्निक्स करनी है, इनफाइनाइट से उसने जो है 8 लिया, और उसने सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमारे को पेंडुलम की भाषा में जो हम इंजीनियरिंग में समझते थे वो समझाया, इतना आसानी से समझ में आया और ऐसा लगने लगा कि यार ये तो संतोष हमारा श्री श्री संतोष बनने वाला है। और बहुत जल्द पता लगा कि इसकी वर्कशॉप, संतोष की वर्कशॉप बहुत पॉपुलर होने लगी है। हम सब फ्रेंड्स एक्चुअली we started trying to be near him, trying to see his workshops, पर नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये वर्कशॉप सिर्फ बॉम्बे में कर रहा था, दिल्ली में बहुत कम कर रहा था। तब हम लोगों ने इसको कहा कि भाई ये जो चाबियां हैं तुम्हारे पास में खुश रहने की, वो चाबियां कुछ करो कि हमें भी उसका कुछ फायदा मिले। हमने कहा कि इतने सारे लोगों को फायदा देते हो, अपने फ्रेंड्स को कैसे फायदा दोगे, और ज्यादा लोगों को कैसे फायदा दोगे। Then the idea of this book came, और उसका नाम जो उसने रखा बिल्कुल आपके रखा, Keys to Happiness. I'm so happy to be introducing Santosh to the audience, and we look forward to this book. I am looking forward to reading this book, and also our friends have decided that this can be a great corporate gift. So we are going to buy this book in bulk, and our corporate gift will be this book in future. So I look forward to this book to read, and I wish Santosh a very, very good luck for his book. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Mr. Deswal. Now, ladies and gentlemen, let's hear it from the man of the hour, Santosh Joshi, please. थैंक यू संजय। मैं मुझे डर लग रहा था कहीं मेरी पोल ना खोल दे। मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं पोल खोलना चाहता था इसलिए रोक दिया मुझे। I would like to welcome all respected Suresh ji, Ashish ji, Uday ji, all dignitaries present here, my family and friends. I welcome you all and thank you for your valuable time. I realized during my growing up age and then while I was working in the corporate setup that life is something which is much bigger and deeper than what I was living and experiencing. I thought what we call life has to have larger meaning and definitely a destination or a goal. I used to think whether I was moving in the right direction or not. I'm sure we all think in the same way at some point in our life. What we experience every moment, what we see, hear, feel at each moment forms an integral part of what we call life. And why not? That's what we have been hearing, reading and talking about, right? When we look at flowing river, do we ever think what is its final destination? Or while watching the migrating birds
do we think where they are heading? But the fact is, even if we are not thinking or trying to know what their ultimate goal is, there is a goal in both the cases. The same stands true for our life as well. Although we are engrossed in experiencing our day-to-day or moment-to-moment life, our life also has a direction, a destination, a goal, a purpose. I realize that when we start thinking about this ultimate goal or try to find a purpose of life, we are guided and held by higher forces towards that what we are seeking. And this is an infallible law. It applies to all of us without exception. Being a past life regression therapist gave me a chance to understand the emotions we all go through due to our past or because of future. I came to understand how emotions have an impact on our day-to-day life, our decisions, on our behavioral patterns. I realized that unless we manage our emotions well, take note of how we react to them, we become the victims of our own emotions. This was the beginning of this endeavor, which ultimately transformed into the book Keys. Through this book, I have tried to convey exactly that. This book is in 3 sections: past, present, and future. And in each section, I have tried to deal with emotions of that dimension of life. Past needs to be healed, present needs to be lived, and future needs to be planned. For a successful life, all 3 are important. During my workshops, I interacted with many people and found the cause of all unhappiness, misery, centered in regrets, worries, anxieties, and insecurities of life. Rather than living the precious moments life offers, we either live in the past or the future, when the truth is that the former is already gone and the latter is yet to come. I discovered that to live the present moment, we have to heal our past and plan our future. This book will give you the means philosophy, meaning heal, live, and plan, are the 3 most powerful keys to unlock the highest potential in each one of us, thus paving the way to a highly successful life. These keys are freely available to all of us. We just need to pick them up and open the doors to our dreams. Writing this book has been a journey for me, from my past to the future. Each chapter has been a chapter of my life. Each and every word of this book has come from my heart, and I believe that whatever comes from heart reaches the heart. I believe that we are all fellow travelers on this journey and should benefit from each other and help each other grow. All my genuine and sincere efforts in writing this book will come to fulfillment if this book touches you somewhere and pushes you to change your life for better. There are some wonderful souls who have come forward to make this mission a grand success. My deepest gratitude to all of them. Aruna, my wife, for believing in me more than I believed in myself. My parents, Aruna's parents, my sister, brother-in-law, Sanjeev Latkar, Madhu Sahu, Meera Bastekar, Sangram Surve and his team, Vipul Bhai Modi, who has printed this book, Mr. Nandu Kumar for the e-book. There are a few people who are not directly involved with the book, but their contribution to my life's journey, and hence the book, is priceless. I wish to thank Vaishali and Rakesh Pedram, Preeti and Amit Sabur, Aarti, Anirudh, Shweta, Santa and Nakul, Pallavi Shinde, Ekta Kapoor, Ramki, Nitin Deshmukh, Puneet Gupta, and Suma. All of you have had a special place in my heart, and thanks a million for always being there for me. My speech will be incomplete without mentioning all those who have attended my workshops.
talks, seminars, and sessions. Thanks to each one of you for believing in me and for becoming an integral part of my family. Without you, I don't exist. Special thanks to friends who have come to Mumbai for this function. Sanjay Deswal, who have come from Delhi. Most importantly, this is my Father's Day gift to my dad. I now offer this book to the chief guests present here for the opening ceremony. Thank you very much. Thank you, Santosh. I speak for everyone in the audience when I say that we're really looking forward to read the book. So without further ado, let's proceed with the book launch. Knowing how creative Santosh is, we should have known that this is a launch that happened in an innovative way. Really too active. This is it, ladies and gentlemen. Keys, the HLP Way to a Regret-Free Life, authored by Santosh Joshi. Alright. Tonight we are also launching the ebook version of Keys. I would like to request Shri Suresh Oberoi to do the honors. As you can see, the book is now available on Amazon.com in the Kindle format. As we all know, Sri Nitinji Gadkari was supposed to be here tonight. However, due to his ill health, he could not come down for the function. Nevertheless, he has sent his best wishes to Santosh through a special video that will be played right now. माननीय सुरेश जी, उदय जी, आशीष जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम में मेरा स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण आज नहीं आ पाया, इसका मुझे बहुत दुख करते हैं। मैं हृदय से आप सबकी क्षमा मांगता हूँ। संतोष को मैं पिछले अनेक सालों से देखता हूँ। एक यशस्वी इंजीनियर के नाते उसने बहुत अच्छा काम किया है, पर साथ साथ जीवन का तत्वज्ञान समझने की उसने कोशिश की और अपने चिंतन के द्वारा उसने कीज करके जो किताब लिखी है वो जीवन का यशस्वी मार्ग दिखाने में निश्चित रूप से उपयोगी है। हमारा जीवन है सुख और दुखों से भरा हुआ है, संघर्ष है, कभी यश मिलता है, कभी असफलता मिलती है और दोनों को साथ में लेकर समाधान के मार्ग से हमें जीना पड़ता है। उस काल में जो दर्दनाक दुखी घटनाएं होती है वो जीवन को बहुत ही दुख और दर्द देती है, पर इससे ऊपर उठकर वर्तमान का विचार करके भविष्य के और सुख और आनंद के साथ कैसे जाना, इसका मार्ग ही संतोष ने इस किताब में बताया है। संतोष का ये किताब अनेक अस्वस्थ और संतोष जिनके तन में ऐसे अनेक आत्माओं को समाधान और भविष्य की दिशा देने वाला विचार है और इसलिए उसके इस कार्यक्रम में आने की बड़ी बहुत इच्छा थी। हमारे समाज में बहुत बड़े प्रमाण पर अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग भाषा है, अलग संस्कृति है, अलग जाति है, अलग धर्म है, अलग अलग विरासतें हैं। आर्थिक दृष्टि से भी अनेक लोग संकटों का सामना कर रही है। जीवन में संघर्ष अटल है और कभी कभी इसी सभी परिस्थिति में अनेक बार मन उसका विपरीत परिणाम होता है, व्यक्ति का मन अस्थिर होता है, डिस्टर्ब होता है। इसी मनस्थिति से कभी कभी लोग सुसाइड कर लेते हैं और ये जीवन मिला हुआ है, ये हमको जीना है और जो दुख है उनको बर्बाद करके सुख और समाधान के मार्ग पर चलना है। ये केवल उसी समय संभव है जब कोई विचार हमारे मन में प्रेरणा के रूप में आए
एक बात सही है कि मुझे एक अच्छा वाक्य याद आता है जो अमेरिकन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के आत्मचरित्र में था। The man is not finished when he is defeated, but he is finished when he gives. जब आदमी युद्ध में हारता है तो समाप्त नहीं होता है, या युद्ध भूमि पर छोड़कर जब भाग जाता है तो वो समाप्त होता है। हमको जब तक जीवन मिला है तब तक इस संघर्ष में जीवन को जीते रहना और समाधान और शुद्ध समृद्धि संपन्नता को मानकर अपने जीवन को अच्छे व्यतीत करके अच्छा कार्य करते हुए चलते रहना, यही हमारे जीवन के यशस्वी जीवन का मार्ग है, यही हमारी जिंदगी है, यही हमारी की है। और इस समाधान की है अपने विचारों के द्वारा ऐसे लाखों अस्वस्थ लोगों तक पहुंचाने का काम संतोष ने इस किताब में किया है। और इस किताब में उसकी पत्नी अरुणा ने भी इसमें बहुत अच्छा सहयोग किया है। ये दोनों भी एक प्रकार से नई फिलॉसफी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। संतोष के इस उपक्रम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा देता हूँ और मेरा विश्वास है कि ये किताब की विचार हमारे समाज के अनेक अस्वस्थ लोगों तक जाएगा और उनको जीवन जीने की नई प्रेरणा देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। खासतौर पर सुधीर जी ऐसे अनेक कार्यक्रम टीवी पर करते हैं जो जीवन का मार्ग दिखाने की कोशिश करते हैं। उदय निर्गुणकर जी केवल पत्रकार नहीं है, अच्छे विचारक है और समाज में गुणात्मक परिवर्तन हो, यही उनकी कोशिश रही है। उदय निर्गुणकर और सुरेश ओबेरॉय जी जो समाज में गुणात्मक परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं, दोनों महानुभावों के द्वारा आज का ये कार्यक्रम होना ये बहुत ही आनंद का विषय है। मुझे इस बात की खंत है कि मैं इस कार्यक्रम में नहीं आ पाया। मैं फिर से एक बार संतोष के लिए और बाकी सब लोगों के लिए और जो प्रमुख अतिथि उनकी फिर से एक बार क्षमा याचना करता हूँ और संतोष के उज्ज्वल जीवन की कामना करके ये विचार उसकी किताब में जो लिखा हुआ है ये लाखों लोगों तक जाएगा और लाखों लोगों को जीवन का मार्ग दिखाएगा, ये विश्वास व्यक्त करते हुए अपना बोलना समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Those were truly motivating and encouraging words from the former national president of TJP. Another round of applause, I think, for him, please. Now I request Advocate to say a few words. आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सुरेश ओबेरॉय जी, माननीय उदय निर्गुणकर जी और जिनका ये पुस्तक जिसका विमोचन हम यहाँ करने उपस्थित है, ऐसे हमारे मित्र संतोष जी, उपस्थित सभी भाई और बहनों, हम सब ने देखा होगा कि माननीय नितिन जी ने अपना संदेश एक वीडियो के द्वारा यहाँ पर जारी किया और आज मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में इसके लिए उपस्थित हूँ क्योंकि नितिन जी ने ये संदेश मुझे दिया कि मैं समय पर पहुंच नहीं पाऊंगा, वीडियो पहुंचाने की व्यवस्था तो जरूर की है, लेकिन मेरी तरफ से संतोष जी को और उनके परिवार को व्यक्तिगत शुभकामनाएं देने के लिए आप वहां पर पहुंचिए और इसके लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। मित्रों, वैसे मेरे लिए आज का यह कार्यक्रम बहुत अविस्मरणीय कार्यक्रम है। संतोष जी, आपकी पुस्तक का प्रकाशन इसके लिए सिर्फ तो है ही है, लेकिन मुंबई भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के बाद अगर सार्वजनिक रूप में कोई पहला कार्यक्रम मैं कर रहा हूं तो ये आपका कार्यक्रम है। और विशेष बात यह भी है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अध्यक्ष पद सौंपा और जिनके विशेष प्रेम के कारण मैं यहाँ तक आ सका, उनके अनुपस्थिति में उन्होंने उनकी तरफ से मुझे यहाँ पर भेजा। इससे बढ़िया चीज मेरे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकती थी और इसके लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। विशेष और तीसरी बात यह है कि राजनीतिक अध्यक्ष पद की शुरुआत का कार्यक्रम भी हैप्पी लिविंग प्रोग्राम का ही और इसके कारण ये मेरे लिए तो बहुत अविस्मरणीय है और मेरे जीवन का यह अनुभव है कि जब जब मेरे लिए कोई चीज अविस्मरणीय होती है मैं इसका प्रचार बहुत करता हूँ। तो इसके लिए आपके इस पुस्तक का प्रचार मेरे और मेरे सहकारियों की तरफ से पूरे मुंबई पर होगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मित्रों, वैसे राजनीतिक जीवन में हम जीते हैं तो हमारे में चाबी का अपने आप में बहुत महत्व है। हमको चाबी लगाने वाले भी मिलते हैं, हम लोगों को चाबी भी लगाते हैं।
कई बार तो हम कार्यक्रमों में जाते हैं, कोई स्लम रिडेवलपमेंट का प्रोग्राम है तो वहां चाबी वाटप का प्रोग्राम करते हैं। तो अलग अलग चाबियां हमने देखी, लेकिन राजनीतिक जीवन में सही मायने में सही राजनीति करनी है तो कौन सी चाबी अपने जेब में होनी चाहिए, इसका दिशा दर्शन करने वाला अगर कोई पुस्तक अवेलेबल है तो संतोष जी आपका ये पुस्तक अवेलेबल है, ऐसा मुझे लगता है। और इसके लिए इस कार्यक्रम में यहाँ पर आया हूँ। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन बाय प्रोफेशन मैं भी वकील हूँ। आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन। सो व्हेनेवर द पीपल कम टू अस, the only thing which they wanted as a lawyer or as a politician, और वो अल्टीमेटली चाह एक ही जीवन में रहती है कि मैं मेरा जीवन और मेरे जीवन में मेरा क्षण और मेरे क्षण में मेरा परिवार और मेरे परिवार में मैं स्वयं ये सुखी कैसे हूं, और उस सुख की कामना के लिए जीवन बिताना ये हर एक आदमी का अपना कर्तव्य है। और इस शोध यात्रा में, जीवन के सुख की शोध यात्रा में अगर कहीं पर अपने को जगह जगह पर मार्गदर्शक मिले तो अपना जीवन और भी उस दिशा में अग्रणी कदम बढ़ता है। संतोष जी का यह पुस्तक जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जीवन की इस शोध यात्रा में एक दिशा दर्शक, एक दीप दर्शक इस प्रकार का पुस्तक है। मैं आपका जाहिर रूप से इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज आपने बहुत एक सिंपल चीज यहाँ पर बताई, HLP, और आपने कहा हीलिंग, लिविंग एंड प्लानिंग। मुझे लगता है ये HLP, हीलिंग फॉर द पास्ट, लिविंग फॉर द प्रेजेंट एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, इस HLP से जो भी व्यक्ति गुजरेगा वो भी HLP में परिवर्तित हो सकता है, हैप्पी लविंग पर्सन। ऐसा है, इस हैप्पी लविंग पर्सन का निर्माण करना, इस निर्माण प्रक्रिया का काम संतोष जी आपके पुस्तक के द्वारा यहाँ पर हो रहा है, ये भी एक सौभाग्यशाली मुझे लगता है। मैं अभी भी ऊपर सुरेश जी को कह रहा था कि आदमी जीवन में बेटर लाइफ, एवरीबॉडी वांट्स टू हैव अ बेटर लाइफ, एंड व्हेन वी वांट टू गो टुवर्ड्स द बेटर लाइफ वी स्टार्ट कन्फ्रंटिंग आवर ओन लाइफ। बेटर लाइफ की दिशा में चलते चलते अपने प्रेजेंट लाइफ को हम लोग इस तरीके से इस कदर खो जाते हैं कि लाइफ में भी बचेंगे कि नहीं, इस प्रकार की स्थिति। और इस प्रक्रिया में आपका पुस्तक ये बहुत ही मार्गदर्शक रहेगा। आपकी इस पुस्तक की पूरी प्रक्रिया मैंने देखी है, उसकी टाइपिंग, उसकी लैंग्वेज इतनी सिंप्लीफाइड, इतनी ग्लोरीफाइड तरीके से है, तो मुझे लगता है कि आपके पुस्तक की मार्केट में भी बहुत अच्छी एक तरीके से खरीदारों में उसकी प्रक्रिया हो सकती है। और खुद जोशी जी के बारे में मैंने जब जानकारी ली तो मेरे जीवन में इतना वर्साटाइल आदमी मैंने दिखाई। वो खुद मैकेनिकल इंजीनियर है, कॉर्पोरेट लाइफ में काम कर रहे थे। मुझे तो आज तक लग रहा था कि मैं ही बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन आपको देखने के बाद उदय जी मुझे ऐसे लगने लगा कि मुझे भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के नाते करियर शुरू करने वाला इंसान जीवन की शोध यात्रा में दुनिया को दिशा दर्शन दे रहा है, और इसके लिए कोच भी बन रहा है, थेरेपिस्ट भी बन रहा है और मोटिवेटर भी बन रहा है। मुझे लगता है इसके आगे की इस प्रक्रिया में सुनील जोशी जी पूरे देश में अपना मार्गदर्शन इसी तरीके से बढ़ाते रहेंगे, और इस प्रक्रिया में मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी ने मुझे शांति से सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you, Shiraz ji. I now invite Dr. Udayan Gupta to stage to share his thoughts. आदरणीय सुरेश ओबेरॉय जी, इस पुस्तक के लेखक संतोष जोशी, उनकी बीवी अरुणा जी, सौभाग्य का दिन है कि अपने बेटे की किताब का विमोचन उस दिन हो रहा हो जिसको हम फादर्स डे के नाम से जानते हैं। मोरेश्वर जी, मेरे परम मित्र आशीष शेलार, जो आज पहली बार अपने अध्यक्ष पद के काल का पहला जाहिर प्रोग्राम के लिए आए, उनके हाथ में मैंने चाबी देखी
इस चाबी को लेकर वो आगे जाएंगे। हैप्पी और लविंग पर्सन की चाबी मुझे मिल गई है, उनका पक्ष भी सबको लविंग लगेगा, इससे मेरी अपेक्षा है। उन्होंने कहा कि ये इस पुस्तक का प्रचार करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आशीष शेलार ऐसे व्यक्तित्व है, जब इसकी दूसरी, तीसरी, 5वीं, 10वीं एडिशन निकलेगी तो मुंबई से आप महाराष्ट्र की राजनीति में और बाद में राष्ट्रीय राजनीति में भी जाओगे। समय कितना गति से जाता है। जब मैं आईटी इंडस्ट्री में था तब हमने Y2K प्रॉब्लम के ऊपर काम किया था, और इस Y2K प्रॉब्लम के ऊपर काम करके बहुत सारे हिंदुस्तानियों को हमने अमेरिका भेजा था प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए, वहां पढ़ाने के लिए, उसके प्रोग्राम्स करने के लिए। तब जाके कंप्यूटर क्रैश होने वाले थे, हुए नहीं, प्रोग्रामिंग चेंज हो गया। वो जमाना अभी तक मुझे याद है, और अब देखते देखते 13 साल गुजर गए। कैसे देखें इस घड़ी को? 21वीं शताब्दी जो आने वाली थी उसके 13 साल गुजर गए, या 22वीं शताब्दी जो आने वाली है उसके 87 ईयर्स बाकी रह गए। इस नजर से आज के दिन को हम देखें, इसके ऊपर हम आगे जाके क्या करने वाले हैं, इसका सोर्स कोड है। और यही मेरे आज के विचार का एक सूत्र है। आज तक तो हमने मोटिवेशन स्पीकर के नाम पे डेल कार्नेगी का नाम सुना था। आज के बाद मैं ये कहूंगा कि हिंदुस्तान का डेल कार्नेगी अगर कोई है तो वो संतोष जोशी। सोचता हूं 87 ईयर्स के बाद कैसे होगी दुनिया। 20 साल पहले तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि किसी मेड सर्वेंट के पास भी मोबाइल फोन होगा, ड्राइवर के पास भी मोबाइल फोन होगा। मालूम भी नहीं था कि वीडियो कैसेट नाम की चीज बेकार है, 5 साल में इसको कोई छूने वाला नहीं है। टीवी के एंटेना 15-20 साल पहले हुआ करते थे, वो भी बेकार है। कितना कुछ बदल गया। कैसा होगा ट्रैफिक, कैसी होगी बारिश, और कैसे होंगे पॉटहोल्स, कैसे होंगे रास्ते, और जिंदगी का सफर कैसे होगा। ये वैसे ही होगा जैसे आज हो रहा है, या वैसे ही होगा जैसे होना चाहिए। जैसे होना चाहिए इसका अगर मार्गदर्शन आपको करना है, लेना है, तो मुझे लगता है इससे बढ़िया किताब मैंने आज तक नहीं पढ़ी। जिंदगी हमने एक कॉम्प्लेक्स बना दी। आजकल हमारा एड्रेस भी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स होता है, उसके बिना एड्रेस नहीं होता। कहाँ रहते हो? लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स। तो हमारी जिंदगी के कॉम्प्लेक्स की शुरुआत हमारे एड्रेस से होती है। आज इसी कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर जो भी संशोधन दुनिया में हो रहा है, उससे एक ऊंचे दर्जे का, एक अव्वल दर्जे का संशोधन मैंने इस किताब में पाया है। विज्ञान ने इतनी प्रगति की कि हमने यहां से प्लूटो तक, द लास्ट सेंटीमीटर कितना डिस्टेंस है वो तो नाप लिया, लेकिन हमारे अंदर के दिल को या माइंड को हम अब तक उसकी डेप्थ को नाप नहीं सके। और इसके कारण हमको लगता है कि some organizations are great, some people are born great, some are not born great. That's not the truth. The truth is they have changed themselves with the time. Those who are rigid, they will extinct. Those who are adaptable, they will survive. And those who are creative, they only will flourish. ये किताब आपको उस क्रिएटिव सर्जनशील रास्ते पे ले जाती है, जो रास्ता आपको आपके बुनियादी ढांचे से हिला देगा और एक नई तालीम देगा। विज्ञान की प्रगति ने हमको निसर्ग से अलग किया। इसके फायदे, एक फायदा यह हुआ कि जो प्रस्तावित रूल था ग्रेविटेशन को,
उस ग्रेविटेशन के रूल को अगर हम नहीं तोड़ते तो हम शायद सैटेलाइट नहीं भेज सकते, हम चांद पे नहीं जा सकते। तो जब तक जो सेट रूल्स हैं उनको हमने न तोड़ा, हम नई खोज नहीं कर सकते। इन सर्च ऑफ एक्सेलेंस नहीं होता था। वही इन सर्च ऑफ एक्सेलेंस इस किताब की नींव है। मन का शोध एक निरंतर प्रक्रिया है। फिलोसॉफी ऑफ साइकोलॉजी, इसके ऊपर जितना रिसर्च आजकल फ्रांस में, रशिया में या जर्मन यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, आप वेबसाइट जाके देख लीजिए, भरे पड़े हैं डॉक्टरेट्स वहां पे इसी विषय की खोज कि पोस्ट ह्यूमन वाला लाइफ कैसे होगा। जहां पे इटली में एक पोस्ट ह्यूमन बन रहा है, एक शिप बन रही है, वहां पे इंसान की जिंदगी कैसे होगी। इंसान के मन के शोध के ऊपर जितना अरबों आज खर्च हो रहा है, शायद किसी और चीज पे ना खर्च हो। मेरी दीदी एक डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है। हम एक दिन बात कर रहे थे, उसने बताया कि 10 साल के बाद शायद मेरे पास ऐसे ही पेशेंट होंगे जो सिर्फ 3 चीजों की बीमारियां लेके आएंगे: ब्लड प्रेशर, more blood pressure, and more blood pressure. That's the root cause, because our lifestyles are taking toll on us. For the whole of our life, we work very hard in schools and colleges and go to the best of the management schools. We get to the best of the corporates. We travel to the best of the destination, perhaps stay at the best of the hotels. We get trained by best of the management scientists. At the end of the day, we realize that at 35, you either have a blood pressure, diabetes, or a heart attack. Why? Because simply we didn't have a key to come out of our past, to give our present and plan for our future. अगर ये किताब शायद 10-15 साल मेरे साथ होती पहले, तो शायद मेरी जिंदगी से और अलग हो सकती। Nevertheless, इसके बाद की 15 साल की जिंदगी डेफिनेटली इससे अलग होने वाली है। एक रॉजर पेनरोज नाम के थ्योरिस्ट हैं, अगर किसी ने उनकी किताब पढ़ी है, शैडोज ऑफ माइंड या एम्परर्स ऑफ माइंड नाम की 2 अच्छी किताबें उन्होंने लिखी है। इसको एक सेमिनल वर्क माना जाता है सिगमंड फ्रॉइड के बाद। 1865 में सिगमंड फ्रॉइड का जन्म हुआ था, इसके बाद रॉजर पेनरोज का नाम दिया जाता है। उन्होंने कई सालों पहले ये बात कही थी कि अगर इस चीज के ऊपर इंसान को ध्यान देना है, वो ध्यान थर्ड लिविंग क्या होगी, जैसे कि पृथ्वी, आकाश, गंगा के बाद का जीवन कैसे होगा, इसके ऊपर नहीं है तो हमारा अंदरूनी जीवन कैसे होगा, हमारा अंतर संघर्ष कैसे होगा, जो 3 प्रकार का होता है। इंसान का इंसान से, इंसान का निसर्ग से और इंसान का डेस्टिनी से। इन तीनों संघर्षों में जो हमारे पास बैगेज आता है, उस बैगेज को लेकर हम जिंदगी का एवरेस्ट नहीं पार कर सकते। उस एवरेस्ट को अगर पार करना है तो उस बैगेज को छोड़ना होगा, और ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। ये प्रक्रिया एक साइंटिफिक मेथड है, उस मेथड का पूरा विवेचन इस किताब में किया है। फिर इसकी एक लाइन पढ़ी, एक इसके एग्जाम्पल मैंने पढ़े हैं। मालूम लगता है कि कोई किसी ने मेरी जिंदगी के ऊपर कोई कैमरा लगा हो और मेरी स्टोरी मुझे किसी अलग तरीके से बताई हो, लेकिन उस घटना से क्या लेना, क्या छोड़ना, ये आज तक पता नहीं था। उसी चीज को अलग अंदाज में दिखाना अपने आप में एक सर्जनशीलता का प्रतीक है, जो आज संतोष जोशी ने दिखाया है। मेरी उनसे गुजारिश रहेगी, इस किताब को न कि सिर्फ अंग्रेजी में रखें, इसको हिंदी में ले आए, मराठी में ले आए, गुजराती में ले आए, ताकि इसका लाभ उन सारे युवकों तक पहुंचे जो शायद अपने जिंदगी के ताले को खोलने के लिए किसी चाबी की तलाश में हो। जनरल इलेक्ट्रिक के चेयरमैन की एक किताब है द जी वे, उसमें उन्होंने लिखा है कि जब मैं मैनेजमेंट ट्रेनी था तो एक मिल्क प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी ने एक कन्वेयर बेल्ट को मॉनिटर करने का काम दिया था, और उसमें उन्होंने देखा, और बड़ा अच्छा निरीक्षण लिखा है, बड़ा प्यारा निरीक्षण है। उसमें लिखा उन्होंने कि नो मैटर द साइज एंड शेप ऑफ द कंटेनर, नो मैटर द साइज एंड शेप ऑफ द कंटेनर, क्रीम ऑफ द मिल्क ऑलवेज यूज्ड टू कम एट द टॉप।
उस क्रीम को, अपनी जिंदगी के क्रीम को ऊपर कैसे ले आए, ये अगर आपको जानना है तो इस किताब को आपको पढ़ना होगा। अभी मैंने बताया कि एक अच्छा कॉर्पोरेट गिफ्ट है। मैं इससे भी आगे जाके कहूंगा कि किसी भी पिता को अपने बेटे के बर्थडे के लिए अगर कुछ देना है तो इससे अच्छी किताब आजकल मार्केट में नहीं है। जो कि अब आशीष शेलार ने बोला है कि वो खुद इसकी बिक्री करेंगे, तो ये साल तो पक्का करेंगे, अगले साल के वादे को क्या करेंगे मुझे मालूम नहीं। चुनाव का वर्ष है तो जरूर करेंगे। लास्ट पॉइंट इज मन का साफ होना बड़ा जरूरी। मराठी में एक गाना है, मन शुद्ध तुझं गोष्ट राजा पृथ्वी मोलाची, तू चाल गड्या तुला राजा भीती गुणाची। अगर मन साफ है तो आप कोई भी बड़ा, कोई भी लक्ष्य पार कर सकते हैं। इस मन को साफ कैसे रखना है, इस मन को प्रेजेंट में कैसे रखना है और फ्यूचर के लिए कैसे तैयार करना है, यही आज इस पुस्तक की नींव है। और मैं ये सौभाग्य समझता हूं कि he left his corporate job to do this. Very few people dare to take this step in life and write books and do research. ये नहीं कि इसके ऊपर हमारे यहाँ पहले रिसर्च नहीं हुआ था। हमारे यहाँ इसके ऊपर पहले से भी रिसर्च हुआ है, which is the relation between mind matter। जैसे कि वेस्टर्न फिलॉसफी है जिसका मूल तत्व है डेकार्ते ने बोला था ओजितो इर्गो सम, I exist because I think। इसका ये मतलब है कि मैं हूं because मैं सोच सकता हूं। इसका मतलब है मेरा जो पिंड है, मेरा जो शरीर है, अस्तित्व है, वो मेरे सोच के अलग है। इस विचारधारा से पूरी एक्सप्लॉइटेटिव सोशल ऑर्डर आगे जाके निकली। इस विचारधारा से पूरी एक्सप्लॉइटेटिव इकोनॉमिक ऑर्डर निकली, टेक्नोलॉजिकल ऑर्डर निकली। इसके सारे फायदे भी हुए। यूरोप का जो पूरा 18-19 सेंचुरी का जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ, उसके पीछे शायद इस विचार की प्रेरणा थी। लेकिन इससे जो एक्सप्लॉइटेटिव शायद इस किताब का मूल तत्व है, वो है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड। That which is there in the microcosm is there in the macrocosm। अनुरणीयाम महतो भूयाम। ये किताब हमें उस यूनिटी की याद दिलाती है जो हमारे विभिन्न स्वभावों में, हमारे डाइवर्सिटी में है। और इसीलिए इस किताब का अंतिमता वर्णन में एक ही शब्द में, एक ही पंक्ति में करूंगा। ये किताब एक लाइट की तरह है, एक सनरे की तरह है। इसको पढ़ने के बाद आपके मन के प्रिज्म के ऊपर, आपके दिमाग के प्रिज्म के ऊपर वो पड़ेगी और बाहर आते वक्त आपकी जिंदगी का सप्तरंगी इंद्रधनुष आपके सामने आएगा। यही इस किताब की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। ये चाबी आज जो हमारे हाथ में दी है, इससे समस्याओं के अनेक ताले खुल जाएं और इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रति की बिक्री हो, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। मोरेश्वर जी को फिर से मैं बधाई देता हूं कि बहुत सारे पिता मैंने देखे हैं, लेकिन बहुत कम पिता ऐसे देखे हैं कि जिनको इतना अच्छा और प्यारा फादर्स डे का गिफ्ट दे रहा हूं। थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर हेल्प। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। Thank you, Dr. Mukherjee. I now request Shri Suresh Oberoi to enlighten us with his words. नमस्कार। संतोष भाई, आदिल भाई और संतोष भाई का परिवार को खुश देख के मैं खुद इमोशनल हो रहा हूँ। इतने खुश देख रहे हैं सब, आज यही जो चाहते हैं हम जिंदगी भर। आज जो टॉपिक है लाइफ की कीज की, इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। 1980s 85 में बड़ा ओवरनाइट स्टार बन गया था एक बार फिर पिक्चरों के बाद।
बड़ी बड़ी फिल्में लावारिस वगैरह। तो सडनली मेरे हाथ में मेरे भाई एक्सीडेंट में शोलापुर में मेरे भाई की डेथ हो गई थी। तो वहां मैं इतना शॉक्ड हुआ कि वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ। यहां तक ये हाल हो गया था कि फाइनली कुछ समझ नहीं आता तो हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, इधर उंगली ऊपर वाला। कभी भी मैंने अपने ऊपर नहीं देखा। गुस्सा क्यों आया, रास्ते में रिक्शा वाला सामने, वो रिक्शा वाला, वो टैक्सी वाला ऐसे आ गया, मैं तो गाली दिया, बच्चे ने ऐसा किया हमेशा। तो ये मेरा हाल ये था कि सारी दुनिया मुझे उल्टी लगने लगी। देखा दुनिया कितनी छोटी है। वो देखो सर, बैल्कनी, भगवान ने अच्छी बैल्कनी दी, समंदर के किनारे बंगला दिया, और क्या मैं उसका क्या बात क्या कर रहा हूँ, थिंकिंग मेरी कभी होराइजन नाम की कोई चीज है, जमीन और आसमान कभी मिलता है, कितना झूठा है। देखो भगवान मेरे भाई को मार दिया, मेरे साथ एक्सीडेंट कर दिया, मेरे साथ ही सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग। आसमान से जमीन मिलती नहीं तो झूठे लोग दुनिया में अच्छे होते हैं। अभी क्या स्काई इज ब्लू, नॉनसेंस, ऑप्टिकल इल्यूजन है। स्काई तो ब्लू होता ही नहीं, वो तो कलरलेस है। भगवान कितना झूठा है। धरती घूमती है और हम बोलते सनराइज और सनसेट। वाह, भगवान कितना झूठा है। देखो कभी सनराइज होता है, कभी सेट होता है, मैं ही घूम रहा हूं। मतलब मेरी बुद्धि इतनी उल्टी हो गई थी एक एक्सीडेंट और शॉक से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, व्हाई मी। तो हम लोग जिंदगी में ये कीज की बात जो कर रहे हैं, व्हाट इज द की, हम लोग चाहते क्या है। अब यहाँ सब बैठे हैं, यहाँ बैठ के भी हम घर में सोच सकते मेरे डिनर पे क्या हो रहा है, घर में भाई चली गई क्या, अरे दरवाजा बंद किया है कि नहीं, गैस का उसने चूल्हा खुला तो नहीं छोड़ दिया होगा। 8:30 हो गए, पता नहीं सुरेश कब तक बक करेगा, मेरा खाना क्या होगा। बच्चे पता नहीं होमवर्क करते हैं, टीवी जरूर लगाएंगे, मैं सोचा था नहीं होगा। तो यहाँ बैठ के भी हम कहीं और रह सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हम कहाँ बैठ के क्या करना चाहते हैं हमको ही नहीं मालूम। इसीलिए क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग। तो मैं गली गली घूमा, घर घर घूमा, दरगाह गया, पता नहीं कितनी दरगाहें गया। क्या मैं क्या चाहता क्या था, नॉलेज, शांति दुनिया में। तो ऐसी एक औरत, एक लेडी मिली थी, तो गुरु, तो उसको मैंने गया मिला। औरतों से कोई गुरु ज्ञान लेता है क्या, बेवकूफ लोग होते हैं। एंका दिमाग खराब। हैदराबाद से के अंदर भले वैसा बुरके में रहते हैं लोग, और बचपन में उनके साथ भी बताया, उनसे क्या बात करनी है। एक गया, मैंने बोला भगवान जी, गुरु जी मुझे शांति चाहिए। गुरु जी तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, गुरु जी मुझे शांति चाहिए। चौथे दिन बोलती है, गुरु जी तू क्या शांति 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 बोलता है, शांति के कर्म करता है क्या। बोले पागल, नाम देने में कितना आसान है ना, अहंकार, सुरेश ओबरॉय, अहंकारी, मतलब इतना जो भगवान को भी बोलता है सब झूठा है तू। तो मैंने बोला यार ये औरत पागल है, मेरे को बोलती है अहंकार, क्या बोलती। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मैं सोचा था कि कोई जादू कर देगी, ताबीज दे देगी, गले में बोलेगी मोती पहन लो शांति चाहिए तो, या कोई इच्छा वाला ये हीरा पहन लो, तो कुछ भी नहीं होती, अकल नहीं। फिर मैंने बोला गुरुजी मेरे को ना वो जो ड्राइवर है घर में स्टाफ है ना, ऐसा मिलता है, या तो गाड़ी बहुत तेज चलाता है, मैं कम बोलता हूँ तो दूसरा मिलता है बहुत स्लो चलाता है, तीसरा मैं बोलता हूँ तो बहुत ही कम मिलता है, या तो कोई ज्यादा ही होशियार मिलता है। तो क्या चाहिए, तो मुझे उन्होंने क्या जवाब दिया, बोले कौवा कहाँ करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। मैंने बोला ये तो परफेक्ट 100% पागल हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ मेरे घर में ऐसा स्टाफ क्यों आता है, व्हाई एम आई अट्रैक्टिंग पीपल, मुझे क्यों अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। सारा दिन मुझे इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, स्लो वाला चाहता हूँ तो फास्ट मिलता है, फास्ट वाला चाहता हूँ तो स्लो मिलता है, अगर इंटेलिजेंट चाहता हूँ तो मेरी चोरी करके भाग जाता है, नहीं तो कोई बेवकूफी मिलता है जिसको अकल नहीं। कौवा कहाँ करता है, मैं गुस्सा आता। धीरे 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 सब समझ में आया कि है क्या लाइफ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मीनिंग गुरु ने हमको उसको समझाया था कि एक एक आदमी के संस्कार है। कौवा कहाँ करता है, कहाँ ही करेगा, बिल्ली म्याऊं करती है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं ही करेगी। वो जो 25 साल पहले गुरु ने बोला आज समझ में आया। मैं उसको बोला था पागल उसको,
आधुनिक चरण ढोके, अगर वो जिंदा होते चरण ढोके पीता। इसका मतलब कि लाइफ में मैं कौवे को तो बोलता नहीं कि यार तू जाके कोयल की तरह क्यों नहीं बोलता, तू कितनी सुंदर है, इधर आ मैं तेरे को ज्ञान देता हूँ, कौवा तो इधर आ क्यों कहा करता है यार, तू सुन कोयल की तरह बोलना तो कितना खूबसूरत लगेगा, तो उसको सुन मैं तेरे को रिकॉर्ड करके सुनाता हूँ। विल यू वेस्ट टाइम ऑन दैट? आप इवन इमेजिन करोगे, ये तो कैरेक्टर का इमेजिनेशन खूब चलता रहता है, आप इसे इमेजिन भी करोगे कभी कि बिल्ली को बोलेगे क्यों म्याऊं म्याऊं करती है, क्यों कुछ हमारी तरह बात करना नहीं करते ना। लेकिन इसी तरह हम लाइफ में, स्टाफ में, पर्सनालिटी में, दोस्तों में, रिलेशनशिप में क्यों नहीं करते? इसके संस्कार है। कभी बोला कि घर में एक दूसरे वाला होता है, वो बेचारा विलन बन के बैठता है, वो जो कुछ नहीं भी करा ना तो उसकी वजह से हुआ। आज घर से नौकरी छूटी ना, नौकर चला गया ना भाग के, ये जरूर सामने डांटा हो क्योंकि वो बहुत गुस्से वाले हैं, बाकी सब अच्छे। ऐसा उसको कभी भी हम लोग को एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। और जैसे भाई बता रहे थे बात, लाइफ में है क्या? थिंकिंग। आपको मालूम है कि जिस तरह हम फिजिकली तो देखते हैं कि पांव से लेके सर तक जितने ब्लड कैरिंग वेसल्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे जो ब्लड कैरी करते हैं, और उसको एक लाइन में लगाओ तो कितना होगा? 1000 फीट वगैरह नहीं, मैं कहीं पढ़ा सम अ फ्यू 100 माइल्स लॉन्ग होता है। पैर से लेकर सर तक अगर एक लाइन में लगाओ तो उसकी सर्कुलेशन के लिए हम रिसर्च करते सोचते हैं। लेकिन जो थिंकिंग है, एवरी थॉट, जैसे ब्लड प्रेशर की बात कर रहे थे, 100% ब्लड प्रेशर दूर हो सकता है, 100% जरूरत ही नहीं दवा की, अगर हम अंडरस्टैंड करें। खाली ज्ञान ये नहीं, किताब में पढ़ा और बोल दिया, टीवी पे देखा बोल दिया, इंटरनेट पे पढ़ा बोल दिया, ये है बोल दिया, नहीं, उसको अंडरस्टैंड करके लाइफ में लाना है। अंडरस्टैंड ये करना है कि एवरी थॉट, सबसे पहले तो थिंकिंग क्या है? एवरी थॉट हैज अ रिएक्शन ऑन बॉडी के पता नहीं कितने केमिकल्स रिलीज होते हैं एक थॉट से। एक गुस्से से आपको मालूम है उसका जो है जो एक निकालूंगा, क्या मैं जूता हूं? नहीं हूं। कपड़े बदलूंगा, क्या मैं कपड़े हूं? नहीं हूं। क्या मैं ये हाथ से हाथ खाना खाऊं? मैं हाथ हूं? नहीं हूं। मैं पाँव हूं? मैं हूं कौन? आई एम सोल। सबसे पहले बेसिक क्लैरिटी ये करें कि सारे ब्लड प्रेशर की बीमारी और गुस्से के संस्कार को बदलना है। संस्कार क्या बदलना है? कौवा कहाँ का जो मैं तो सैजिटेरियन हूँ यार, मेरा ये है ही है, मैं तो एरीज हूँ, मैं तो हूँ, मैं 8 नंबर बॉर्न हूँ, देखो किताब में लिखा हुआ है ना, फिर जिसके वो बोलते कि क्यूरियस जो भी है किताब लिख के वो यहाँ से हमारे ऋषि मुनियों की पसारी लेके जाके वहां पता नहीं इंग्लिश में क्या कन्वर्ट करके यहाँ लाते हैं, सब उल्टा सीधा। ओहो, एक किताब पढ़ रहा था, आप बस पॉजिटिव थिंकिंग करते जाओ कि मेरे पास लाल गाड़ी है, मैं घूम रहा हूँ, लाल गाड़ी है, मैं घूम रहा हूँ, तो अरे लाल गाड़ी और मैं घूम रहा हूँ तो फिर सारे प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं अभी तक। ऐसे थोड़ी होता है। कहीं जाओ तो इधर जो है तेरे पास काल सर्वदोषी, तेरा काल सर्वदोषी है। अरे जो मेरे घर आया, कि मेरे बाप दादा परदादा खानदान सब सांप मारते थे क्या? यही चीजें सुन सुन के सोच, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं। जैसे सूरज का मंदिर, सारी उल्टी दुनिया, ये आ गई, ये पहन लो पिक्चर आ जाएगी, ऐसा होता तो सारे सुपरस्टार होते। तो प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली अंडरस्टैंड करना है कि मैं हूं एक सोल। सोल क्या है? उसके साथ 3 चीजें हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन बुद्धि, सो आई द सोल, आई एम स्पीकिंग, ये मुंह से बोल रहा हूं, हाथ हिला रहा हूं, आई द सोल। सुबह उठ के आप बोलो और आई द सोल, मैंने एक दिन ऐसे, मैं आपको उसके बाद बताऊं, तो जो बात रह गई कि एक थॉट कि इतनी बीमारी पैदा करती है थिंकिंग, और थिंकिंग से पहले क्या है थॉट। अभी आप बोलेंगे मैं थॉट को कैसे कंट्रोल करूं यार, वो तो आप ही आ जाती है, उसे को कैसे कंट्रोल करूं? वो कैसे आएगा? कैसे आएगा? मैं जैसा पढ़ा लिखा आदमी, कैम्ब्रिज का स्टूडेंट, मेरी सिस्टर जो है हिंदुस्तान में इंडियन इंस्टीट्यूट ओनली लेडी डीन, 90 इयर्स के अंदर पहली लेडी डीन, बड़ी सबसे बड़ी साइंटिस्ट,
घर में न्यूरो सर्जन मेरे को एक आदमी, मैं ढूंढ रहा हूँ कि यार मेरा गुस्सा कैसे कम होता है सिखाओ। तो एक आया गुजरात से, एक हाथ देखने वाले, एक काम करो साहब, आप ना शावर लेके गर्दन के हिस्से पे ना उस पे आप पानी पहले डालना और आप प्लीज, उससे आपका गुस्सा ठीक हो जाएगा। और सुरेश ओबेरॉय इतनी फिल्में करके और फैमिली मेरी इतनी सारी सब साइंटिस्ट वाली, मैं शावर खोल के गर्दन झुका रहा हूँ, ये वाला पानी, ये मैं करता था। अरे खोज है कि क्या है यार मेरे अंदर, ये क्यों नहीं है मेरे अंदर, वो हाउ टू इम्प्रूव, मैं बेटर पर्सन कैसे। अब मैं ये भी किया, लेकिन ये नहीं सोचा